Hello everyone, welcome to my channel. Let's solve UPSC. I hope you are all doing good and working hard to achieve your dream of UPSC CSC 2025. Today, in this video, we are going to talk about economy for UPSC CSC Prelims 2025. Point ये है कि economy is a very major subject in prelims because around 28 to 30 marks of the prelims paper is from economics. सो 28 से 30 नंबर अगर प्रीलिम्स में इकोनॉमी का आ रहा है दैट मीन्स इट हैज़ अ वेरी मेजर वेटेज इन हेल्पिंग यू टू क्लियर योर प्रीलिम्स. नाउ बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स. The first one is that there is no single source for economics. आपके पास में एक सिंगल सोर्स है नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर इन द 2024 पेपर देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑन बीटा. बीटा इज यूज्ड फॉर स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बीटा. बट लास्ट ईयर तक किसी भी बड़े ऑथर या पब्लिशर की बुक में नीदर कोई करंट अफेयर्स मैगजीन में बीटा वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं था. बट अब इस साल बीटा आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा. सो देयर इज नो सिंगल सोर्स विच यू कैन स्टडी फ्रॉम. देन देर आर वेरियस मिथ्स लाइक कि इन्फ्लेशन कर लो, मनी एंड बैंकिंग कर लो, इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है. दैट ओनली इन्फ्लेशन एंड मनी एंड बैंकिंग is the only part in of economy that comes in prelims. Number 3, UPSC has started application based questions from the past few years that you have to apply certain concepts. You need to apply economical concepts that whether changing certain things, कुछ change करने से क्या interest rate बढ़ रहा है, कुछ change करने से क्या aggregate money supply में change हो रहा है. Like these things you have to know the concepts. Now, let us look at the important topics first. जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ इन्फ्लेशन कर लो आधे से ज़्यादा प्रीलिम्स का हो जाएगा. इन्फ्लेशन फ्रॉम द पास्ट 5 years, अगर लास्ट 5 years के क्वेश्चंस को हम देखें तो इन्फ्लेशन हैज़ ओनली 4% ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, नाउ सेम एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो हैज़ अराउंड 4% ऑफ द क्वेश्चंस. Micro and macroeconomics also has around 4% of the questions. And same goes to agriculture, infrastructure as well as industry, which has around 4% of the questions. So how are these three topics less important as compared to inflation? I know money and banking is a very important part, but we cannot leave these topics because we just think that they carry a lesser weightage. क्योंकि जो 28 मार्क्स बन रहे हैं वो सिर्फ मनी एंड बैंकिंग से नहीं बन रहे, वो 28 मार्क्स इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर तब बनता है. सो नाउ नेक्स्ट मिथ अबाउट करंट अफेयर्स. लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी में यू कैन जस्ट रीड PT 365, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बजट पढ़ लो एंड मोस्ट ऑफ द चीजें जो है उसमें हो जाएगी. बट द पॉइंट इज इन द लास्ट 5 years around 45 out of 70 questions have been from static. And by static I mean the concepts of various economical concepts like from microeconomics, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन सब से क्वेश्चंस आए हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आए हैं. नाउ द रिमेनिंग 25 questions are from budget, economic survey and current affairs. And from current affairs the questions are around 10 questions out of 70, and these questions include various government schemes, various things like beta, and these things include current affairs. So the point is कि या तो आप सारी गवर्नमेंट स्कीम्स याद कर लीजिए, या तो आप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को इतने अच्छे से कर लीजिए आप कि आपको उसका एक एक ग्राफ, एक एक पेज रटा हुआ हो, बिकॉज certain graphs also give us the answer in our prelims. जैसे last year or in the 2023 paper there was a question on the largest producer of cobalt in the world. So the answer was Democratic Republic of Congo, and that part was given in that year's economic survey in a graph. है ना, वो उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में एक ग्राफ में दिया हुआ था.
सो लाइक दैट, अगर आपने सारे चार्ट्स, सारे ग्राफ्स एकदम वर्ड टू वर्ड आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट अगर याद हो रहा है, देन यू कैन डू दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट द पॉइंट इज we have to focus more on the static part, which covers more than 50% of the questions every year which are coming in prelims. So you need to have conceptual understanding. Now let us look at the role of PYQs. See, ये देखिए आप 2019 का question, the money multiplier in an economy increases with which one of the following? Okay, now same question in 2021, the money multiplier in an economy increases with which one of the following? ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए यार उन्होंने, एग्जैक्ट वैसे ही पूछ दिया. जो 2019 में क्वेश्चन था वही 2021 में आ गया, ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए थे. एंड आई टेल यू वन थिंग अबाउट मी, 2021 में I did not knew the role of PYQs. I did not used to practice them. I was all about giving mock tests and everything. So PYQs मैंने इतना practice नहीं किए थे. And it's quite obvious कि अगर आप previous year questions नहीं करोगे तो prelims आपका नहीं निकलना है. So मेरा भी नहीं निकला था. Now, in 2019, the chairman of public sector banks are selected by the Bank Boards Bureau. Okay. And in 2022, see, Bank Boards Bureau का question, which of the following statements are correct about the Bank Boards Bureau? So इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा इस स्लाइड में कि क्वेश्चंस तो हमको करना ही है, ये जो क्वेश्चंस है वो तो हमको करना ही है, बट द पॉइंट इज जो ऑप्शंस है, द ऑप्शंस लाइक दिस दिस दिस, ये भी हमको करना है. इनके बारे में भी वी नीड टू हैव सम डिटेल्स, बिकॉज द पॉइंट इज हर क्वेश्चन का एक करेक्ट ऑप्शन है बट 3 रॉन्ग ऑप्शन है. तो हमको वो तीनों रॉन्ग ऑप्शंस के बारे में भी एटलीस्ट वी नीड टू हैव 2 or 3 लाइन्स इन आवर नोट्स. वी नीड टू पुट 2 or 3 लाइन्स इन आवर नोट्स. नाउ let's come to the sources because I know most of you are waiting for this. बहुत सारे लोग तो यार अभी तक वीडियो छोड़ के जा चुके हैं because on most of my videos the average retention time is just 30 seconds. It is just 30 seconds, so it's okay. Now sources to follow. Microeconomics और macroeconomics की 2 बुक्स है of class 12 NCERT. इन दोनों को प्लीज पढ़ लीजिए, इन दोनों को जस्ट रीड देम कवर टू कवर. बट जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है जस्ट स्किप इट, बिल्कुल बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है. डोंट डू द मैथमेटिकल वाला पार्ट, जस्ट डू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th NCERT. जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट्स, गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से, है ना, फ्रॉम दोज 2 बुक्स. गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू कैन चूज एनी ऑफ दीज बुक्स. वन, मृणाल सर के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं एंड विवेक सिंह सर की बुक भी बहुत अच्छी है. आई हैव पर्सनली फॉलोड मृणाल सर's notes in the last 2 times, in 2023 and 2024. I have followed them and it has helped me develop a conceptual understanding pretty much. It has helped me, but the point is they are too bulky. The problem with them is they are too bulky. 1200 पेज के इकोनॉमी के नोट्स आपके, यू कैन नॉट रिवाइज देम इन द लास्ट मोमेंट. एंड द पॉइंट इज विवेक सिंह सर की बुक को मैंने नहीं पढ़ा है, but I have listened from many people that it is good. And he also has a channel, a Telegram channel, in which there are around 450 MCQs for practicing economy, the concepts you study. So you can choose from either one of them. Now, for current affairs, you need to set your limits for current affairs. See, economic survey, budget, स्टैटिक पार्ट ऑफ द मतलब इकोनॉमिक्स, ये कभी ना कभी जाके खत्म होगा. अगर आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं या फिर आप इंटरनेशनल मार्केट पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक कभी ना कभी जाके खत्म होगा. इकोनॉमिक सर्वे, बजट के पेजेस कभी ना कभी जाके खत्म होंगे, बट करंट अफेयर्स कभी नहीं खत्म होगा. इट इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक. सो यू नीड टू डिफाइन योर लिमिट्स अभी से कि हाँ मुझे बस इतना ही पढ़ना है करंट अफेयर्स में, इससे ज्यादा मुझे नहीं करना. यू जस्ट हैव टू फॉलो एनी वन करंट अफेयर्स मैगजीन, किसी भी कोचिंग का आपको करना है, विजन का, वाजीराव, फोरम, आपको जिसका करना है आप कीजिए. आई हैड फॉलोड PT 365 ऑफ विजन IAS, जो मैंने किया था.
and also I have read economic survey plus budget. I have read the economic survey and also the budget for this. बजट और इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा? अभी 1 फरवरी, क्या उसके, हाँ 1 फरवरी को ही मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा. लास्ट ईयर लेट हुआ था बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस, तो लास्ट ईयर इट हैड कम लेट. सो अभी जो है प्रीलिम्स के पहले ही, काफी पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा. सो प्लीज रीड दैट. नाउ नेक्स्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज प्लीज उनको बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक एंड आई डू नॉट वांट यू ऑल टू अगेन डू दिस मिस्टेक. सो प्लीज बहुत अच्छे से कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने कहाँ से है? बाय अ पीवाईक्यू कंपाइलेशन ऑफ द लास्ट 10 years और 20 years ऑफ एनी पब्लिशर. बहुत सारे पब्लिशर्स है. अरिहंत पब्लिकेशंस की एक बुक है, एक दिशा पब्लिकेशंस की बुक है जो मृणाल सर खुद ही बनाते हैं, एररलेस. बट आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट एररलेस. एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं आपको, मैं लास्ट 2-3 साल से दिशा पब्लिकेशंस वाली ही बुक यूज कर रहा हूं, बट दैट इज नॉट एररलेस. There are certain mistakes in that book which you have to rectify on Google afterwards, and I have seen that. So any publisher you can buy, there is no problem. Plus उसमें देखना क्या है हमको? We have to see the questions and the correct answer, but we also have to see the remaining 3 wrong options, which are very important, because these options can be converted into questions next year. Sorry, this year. These options can be converted into questions this year. Now, the link to my Telegram channel is in the description box. I hope I might have addressed all your doubts regarding economy. If you still have any doubts, you can post your doubts in the comment section, as well as you can also ask your doubts on my Telegram channel. So, all the best. Have a great day. Thank you.